Hello students, we were discussing the group 17 elements. In the previous video we have discussed some physical property group 17 halogens. So today we are going to continue the group and its property. So first of all, chemical properties of group 17. Chemical properties of group 17. So what are the chemical properties? First one is oxidation number. Oxidation number. Okay. How to check the oxidation number of each element in the group 17? Suppose the general electronic configuration for group 17 is ns2np5. ns2np5. Let's draw the orbital diagram for the group 17 ns2 and np5 p5 having 3 orbital and 5 electron. ठीक है. And for fluorine, first of all we will discuss for fluorine atom. Fluorine having 2s2 and 2p3, sorry 2p5, doesn't have the d orbital because d orbital doesn't exist in the second shell. So the oxidation state for fluorine will be 1, and on the basis of its electronegativity, negative 1, because there is only single electron required to complete its octet. It cannot hybridize with the other atoms. Hybridize भी नहीं हो सकता, केवल इतना ही करेगा. Next one है Cl, chlorine atom. Again 3s2 3p3. From chlorine onwards, each element will have d orbital vacant. It's d orbital vacant. ठीक है? It's d orbital vacant. 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है? चलिए. So because of being vacant, d orbital can undergo hybridization. हाइब्रिडेशन कर सकता है. ठीक है. सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट, GS ग्राउंड स्टेट. तो अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड स्टेट, -1 will be the oxidation number. But in case of presence of oxygen, if the chlorine is present with oxygen in any compound, then chlorine can show +1 to +7 or positive oxidation state with oxygen. ये नोट कर बैठेंगे. चलिए. Now first excited state. In the first excited state, last electron filled in the p orbital of second shell will be transferred to the d orbital. And in the first excited state, chlorine, bromine and iodine can exhibit 3 oxidation state plus 3 oxidation state. ठीक है. बिकॉज ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पेयरिंग करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे. नेक्स्ट वन इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट. ठीक है. इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, द सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन filled in the p subshell of second shell will be transferred again to the d subshell. आया. इसमें तो नहीं है. ठीक है. तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जो सेकेंड लास्ट वो था, इलेक्ट्रॉन, it will be transferred to the d, and now it can show +5 oxidation state. Again in the third excited state, the paired electron of S subshell
will be transferred to the D substrate. ये वीडियो वाली है क्या? ठीक है, चलिए तो ये जंप कर जाएगा 1 2 3 4 5. So now it can show +7 excited state and +7 oxidation state. सॉरी, तो इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा. फ्लोरीन डी ऑर्बिटल वैकेंट है, एक ही कर सकता है क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1 करेगा. -1 तो ये सारे ही कर सकते हैं. ये कंडीशन तो सबके लिए अप्लाई है फ्लोरीन के साथ साथ. लेकिन फ्लोरीन में केवल यही होगी, दूसरे एलिमेंट्स में ये भी हो सकती है. कैसे कि ये +1 भी कर सकता है, +3 भी कर सकता है, +5 +7 भी. यानी कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के पास -1 +1 +3 +5 +7 ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है. जबकि फ्लोरीन के पास केवल नेगेटिव ही होगी बिकॉज ऑफ बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हैविंग डी ऑर्बिटल एब्सेंट. डी ऑर्बिटल उसके पास नहीं है. चलिए तो ये हुआ. नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. ऑक्सीडेशन नंबर के बाद है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. ठीक है, वन हेलोजन कैन ऑक्सीडाइज द हेलोजन. दूसरे हेलोजन को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है having higher atomic number. हायर एटॉमिक नंबर को ऑक्सीडाइज कर सकता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो. ठीक है, जैसे कि आप देख लो कि आपके पास सपोज F2 में यहां लिख दूं और इसको लिख दूं 2x नेगेटिव. सो ये 2x नेगेटिव होकर के और x2 हो जाएगा. वेयर x जो है ना Cl Br I इन तीनों में से एक कोई भी हो सकता है. मैं एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ. Cl का 2x ऑफ Cl नेगेटिव, 2x ऑफ F नेगेटिव Cl2. ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये आपका रिडक्शन हो रहा है. तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है. यानी कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का जो ऑर्डर आ रहा है वो ये है. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का जो ऑर्डर है वो ये है. सिंपल. ठीक है, तो ये था आपका दो प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज. चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेना हमको anomalous behavior of chlorine. You can take the screenshot of this. चलिए थर्ड प्रॉपर्टी है each element of each group has first element of each group has different behavior from its entire family and that is called anomalous behavior, under which it can show the difference in properties, difference in chemical properties as compared to its entire family. ठीक है, चलिए थर्ड वन इज anomalous behavior of फ्लोरीन. चलिए चेक कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला एनोमलस बिहेवियर है स्मॉलेस्ट साइज. ठीक है, और इसके तुरंत बाद आप लिखते हैं हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका रीजन है हाईएस्ट जेड इफेक्टिव. ये तीनों चीजें इंटररिलेटेड है. ठीक है, ये तो हमने लिख दिया. फिर है कि जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन इन सेकंड लास्ट सेल
सेकंड लास्ट शेल। नेक्स्ट है डी ऑर्बिटल वैकेंट, ठीक है। नेक्स्ट है ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड ओनली। एक ही टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1, ठीक है। डी ऑर्बिटल इसके पास वैकेंट है। और हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका होगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए फ्लोरीन को कंसीडर नहीं करेंगे, यहां कर सकते हैं आप लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। नेक्स्ट है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पावर, अभी कराया है। ऑक्सीडाइजिंग पावर लिखते हैं इसको, ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारी प्रॉपर्टीज आपके पास हो चुकी हैं फ्लोरीन के बारे में। ये इसका एनोमलस बिहेवियर है। आप कंसीडर कर सकते हैं स्मॉलेस्ट साइज, हर एक एटम का अपने ग्रुप में सबसे छोटा साइज होता है। फ्लोरीन का तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा होती है। जेड इफेक्टिव जो है हाईएस्ट है, क्यों? क्योंकि ये देख लीजिए 1s2 2s2 और 2p5, ठीक है। प्रोटॉन कितने हैं 9 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 9, लेकिन कितनी शेल में? जस्ट 2 शेल्स में, केवल 2 ही शेल के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 हो सकते हैं। यानी कि इसमें नियरली इसका जो शेल है वो नियरली कंप्लीशन है, कंप्लीशन के पास है बिल्कुल, और इतने सारे इलेक्ट्रॉन को केवल 2 शेल में इसने होल्ड करके रखा है। तो प्रोटॉन देखिए कितने ज्यादा हो चुके हैं, 9 प्रोटॉन हो चुके हैं केवल 2 शेल के अंदर, तो जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यही रीजन है इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। नेक्स्ट वन, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है सेकंड लास्ट सेल में, भैया आउटर मोस्ट जो बैलेंस सेल है वो तो ये रही सेकंड, और जो फर्स्ट सेल है वो इसकी सेकंड सेल बन जाएगी, आउटर मोस्ट सेकंड लास्ट। तो ये केवल 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। डी ऑर्बिटल इसके पास नहीं है क्योंकि आगे तो कुछ भी नहीं है। सेकंड सेल पी ऑर्बिटल पर ही खत्म हो जाती है, थर्ड सेल इसमें डी होता नहीं है और थर्ड सेल हमारे पास यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब डी ऑर्बिटल वैकेंट। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है क्योंकि इसके पास जगह नहीं है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि बाकी जगह नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है। हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब इस कॉन्फ़िगरेशन को केवल एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है टू गेन इट्स ऑक्टेट, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, एंड इट टेंड्स टू गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, ये गेन करने की कोशिश करेगा। तो आप निकाल कैसे पाओगे? पहली बात है कि जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जो फ्लोरीन एटम होता है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल जो होता है, इसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है कम, क्यों? क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन रहता है। नेक्स्ट वन हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इसकी सबसे ज्यादा होती है। ये दोनों फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के बारे में बात होगी, एटम के बारे में बात नहीं होगी, थोड़ा ध्यान रखना, ये मॉलिक्यूल के बारे में बात है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया एनोमलस बिहेवियर। अब नेक्स्ट करते हैं हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 17, ठीक है। वही करना है हाइड्राइड ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्राइड और ऑक्साइड तो पढ़ने ही पड़ेंगे सबके, फिर मेटल, नॉन मेटल और हेलोजन। चलिए, बात करते हैं। फोर्थ है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 हेलोजेंस, और वी कैन से रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्राइड। चलिए, HE लिखो आप, HE टाइप
HE टाइप ऑफ हाइड्राइड, ये सब HE टाइप ऑफ हाइड्राइड बनते हैं, ठीक है, HE टाइप हाइड्राइड बनते हैं, ठीक है। कैसे आप देख लीजिए, आपका बनेगा HF, फिर बनेगा HCl, फिर बनेगा HBr, उसके बाद HI, ये सब बने सिंपली, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ। अब इसके बाद इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें कि पहला प्रॉपर्टी जो आएगा, सबसे पहला इनका आप देख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ये भी वाटर है, सॉरी ये भी लिक्विड है, ये भी, ये सारे लिक्विड हैं, तो आप लिख लीजिए इनका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा HF, HCl, HBr और HI, ऑलरेडी आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसका मोलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। लेकिन एक फैक्टर यहाँ पर लगेगा H बॉन्डिंग, ठीक है, क्योंकि वो 16 ग्रुप से, सॉरी 15 ग्रुप से लगता ही आ रहा है। 15 में नाइट्रोजन था, 16 में ऑक्सीजन आइटम था और 17 में फ्लोरीन आइटम है, जो ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है, जिसकी वजह से H बॉन्डिंग होती है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो है बॉइलिंग पॉइंट इनसे तो ज्यादा रहेगा और इनका चलेगा ऑर्डर ई, ठीक है, इनका चलेगा ऑर्डर ई। यहाँ आप इसका रीजन लिख लेंगे H बॉन्डिंग और ये आ जाएगा मोलिकुलर मास, लिख लेंगे आप, मैंने बता दिया। नेक्स्ट वन आ जाते हैं। स्ट्रक्चर तो लीनियर ही होगी है, तो बॉन्ड एंगल तो आएगा नहीं, तो बॉन्ड लेंथ चेक कर लेते हैं। बॉन्ड लेंथ, एज वी नो हाइड्रोजन का तो साइज वही है, जबकि इस एटम का बढ़ता जा रहा है और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। तो उससे क्या होगा कि डाउन टू द ग्रुप, अगर फ्लोराइड आप देखेंगे तो फ्लोराइड के जो बॉन्ड लेंथ है इट विल बी इंक्रीज इन दिस मैनर, ठीक है, इस तरीके से वो इंक्रीज होती चली जाएगी सिंपली। चलिए, थर्ड वन बॉन्ड लेंथ हुआ। अब यहां देख लेते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी चेक कर लेते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी में क्या होता है कि जो जितना ज्यादा छोटा बॉन्ड होगा उतना मुश्किल से टूटेगा, तो उतनी एनर्जी ज्यादा होगी बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी में HF सबसे ज्यादा होगा, इसकी एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, फिर Cl, फिर Br और सबसे कम होगी HI, ये भी लेंथी है, ठीक है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आप देख लो, वो उसका भी यही मैनर है, ठीक है ना, उसका भी यही मैनर है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ही लिख लो आप इसको, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एंथैल्पी, जितनी एनर्जी लग रही है वो किसके हिसाब से लग रही है, वो लग रही है बॉन्ड लेंथ के हिसाब से, ठीक है। बॉन्ड लेंथ जिसकी छोटी होगी उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, जिसकी ज्यादा होगी उसमें कम लगेगी। तो टॉप टू बॉटम अगर हाइड्राइड इसके देखे जाए हेलोजन के, इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ता है तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटेगा। नेक्स्ट है आपका एसिडिक कैरेक्टर। ये अच्छा है, इसके बेसिस पे दो तीन चीजें हैं। एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर को आप किससे, H डोनेशन, ठीक है ना, H प्लस डोनेशन जो जल्दी कर देगा वही अच्छा एसिड है। अब H प्लस कहां से निकलेगा, इन सबसे निकलेगा। H प्लस निकलेगा कैसे, बॉन्ड डिसोसिएशन से, और बॉन्ड डिसोसिएशन सबसे आसानी से किसका हो रहा है, HI का। तो टॉप टू बॉटम जब आप हाइड्राइड चेक करोगे हेलोजेंस के, तो उनके एसिडिक कैरेक्टर में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। ये होता है, ठीक है ना, एसिडिक कैरेक्टर इस तरीके से हो। नेक्स्ट है, यहीं पर अगर मैं कहूं pKa वैल्यू, ठीक है, pKa वैल्यू एक तो होती है डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर आप Ka वैल्यू चेक करोगे तो Ka वैल्यू भी उसी की ज्यादा आएगी तो अच्छा एसिड होगा, जो जल्दी से H प्लस दे देगा, ठीक है, ये आ गया। लेकिन अगर मैं कहूं यहाँ पर 6 के pKa वैल्यू चेक करनी है, pKa वैल्यू, तो pKa वैल्यू में ये जो ऑर्डर है ये क्या है, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मतलब ये चेंज हो जाएगा, यानी कि pKa वैल्यू जो होती है Ka के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो HF
फिर HBr, सॉरी Cl, HBr और HF, ये होगा प्लस कार्बन। ठीक है ना। तो आपके हाइड्राइड के बारे में ये 6 पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फिर दूसरी बात, अगर इसमें कोई आपसे बेसिक कैरेक्टर पूछ ले, क्या पता, ठीक है ना, बेसिसिटी पूछ ले अगर, तो बेसिसिटी इसका रिवर्स हो जाएगी, बेसिसिटी इसके अंदर सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, एसिडिटी का उल्टा हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो ये थे आपके हाइड्राइड और ग्रुप 17। इनके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज जो है, एक तो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट में HF है, ठीक है। दूसरा जो है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है और एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। चलिए, तो ये हो चुका है आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑक्साइड के बारे में तो हम पढ़ेंगे कल, थोड़ा सा वाइड है रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्साइड, वही बचेगा बस इसमें। इसके उसके बाद इसके कंपाउंड स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले मैं आपको इसमें बता दूंगा कि रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल, ठीक है। चलिए, नोट तो आपने कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो इससे पहले देख लेते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल। अच्छा, इसके बारे में एक बात और है, HFS बॉन्ड नहीं करता है, याद रखना। फोर्थ प्रॉपर्टी तो यहाँ फिफ्थ है, ये सब फोर्थ के पार्ट थे, ठीक है। फिफ्थ है रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल। बहुत सिंपल है, एक बात बताइए, यहाँ समझ लेते हैं। ये मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, और जो आपका हैलोजन है, ठीक है, ये नॉन मेटल होते हैं। अब जब नॉन मेटल होते हैं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, वो तो हमें पता ही है, 10th क्लास से पढ़ा हमने। अब जब कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में कंबाइन होते हैं, दे विल फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स, बाइनरी कंपाउंड बनेंगे। और बाइनरी कंपाउंड बनाने के लिए 9th क्लास का सबसे अच्छा मेथड, वैलेंसी चेक करो, क्रॉसओवर कराओ, कंपाउंड बनाओ। सपोज मैग्नीशियम है, इसका मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दूं तो बनेगा MgCl2, ठीक है। सोडियम है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दूं, ट्वाइस ऑफ NaF बनेगा, ट्वाइस ऑफ NaF, ठीक है। तो इस तरीके से बाइनरी कंपाउंड चाहे जितने बना लो। देखो, ये सारी रिएक्टिव मेटल है, आयनिक बॉन्ड बनेंगे, आयनिक कंपाउंड बनेंगे सर, ठीक है। NaCl, ट्वाइस ऑफ NaCl बन जाएगा, N2 प्लस Na, ट्वाइस ऑफ Na प्लस Cl2, ठीक है। चलिए, लास्ट टॉपिक है आज का, जो आज का लास्ट टॉपिक है आपका, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड अदर हैलोजन, ठीक है। देखो, हर चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर याद नहीं होता, इतनी रिएक्शन है। हर कैटेगराइज करो ना, कैटेगराइज करने के बाद जब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे, उसमें सबसे पहले आप यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लो। ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ने के बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, टुवर्ड मेटल, टुवर्ड नॉन मेटल और टुवर्ड हैलोजन। 4 टाइप से ही तो आपके जो सही तरीके से कंपाउंड बनते हैं। हाइड्राइड हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, फिर हम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, फिर मेटल के कंपाउंड सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, फिर नॉन मेटल के पढ़ते हैं, फिर एक हैलोजन है तो उसके टुवर्ड भी उसका रिएक्टिविटी शो कर दो, ठीक है। तो अब इनका रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन का मतलब है कि हैलोजन से हैलोजन की रिएक्शन कराना, ठीक है ना।
तो यही आपको बता रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, ठीक है, टुवर्ड अदर हैलोजन। और ये एक टॉपिक है आपके चैप्टर में जो आपको पढ़ाया जाएगा, जिसको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। यहां मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूं, इंटर हैलोजन कंपाउंड, ठीक है, ये हो गया। अब रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड अदर हैलोजन क्या करना है कि क्या एक तो ऑक्सीडेशन पावर पढ़ाई, ठीक है ना, कैन ऑक्सीडाइज हायर एटॉमिक नंबर हैलोजन, छोटी हैलोजन बड़ी हैलोजन को रिप्लेस कर सकती है। यहां से आप याद रखना, रिप्लेस करो, चलो छोड़ो, पहले ऑक्सीडाइज कर सकती है। एक तो रिएक्टिविटी ये अभी पढ़ा ली थी, ठीक है। दूसरा अगर मैं कहूं कि यहाँ रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन है, तो ये पता है XX-3, XX-5 एंड XX-7 टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीडेशन नंबर होगा 1, 3, 5, 7, याद होगा, ठीक है। अब यहाँ जो X डैश है बेटा, ये X जो है ये बिगर है और X डैश जो है ये स्मॉलर। बस इतना याद रखना है। यहाँ इंट्रोडक्शन हो चुका है इसका, रिएक्टिव टुवर्ड हैलोजन, अदर हैलोजन का। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ऑक्साइड पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्साइड, और उसके बाद हम इसके कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। और ये टॉपिक आपको डीपली पढ़ाया जाएगा। इट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, और ये लास्ट में आएगा, और वहां पर इसका एक क्वेश्चन भी आता है, वो भी बता देगा, ठीक है। यहाँ इतना ही पढ़ पाता इसके बारे में, कैसे रिएक्टिविटी शो करता है। एक तो ऑक्सीडाइज कर सकता है, दूसरा इस तरीके के कंपाउंड बना सकता है, काम खत्म, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए तो इतना ही है, बाकी करते हैं कल।